Hello everyone, myself Abhijit Sinha, and today I'm going to start our new chapter India, my motherland. It means Bharat, हमारी मातृभूमि. It means in this chapter, all the descriptions given by are given about India. So let's start the topic. India is our motherland. We also called it Bharat. India is our motherland, and we also called it Bharat. Not only Bharat, India is also known as Aryavarth, Hindustan, Aryavarth, Riva, etc. It means India have lots of others names which were given by the invaders who came to India in early times. Ours is one of the oldest civilization of the world. हमारा civilization जो है वो world का oldest civilization है. It is Indus Valley civilization. We have already read about it. India is a vast country with an area of 3.28 million square kilometer, and it ranked 7th after Russia, Canada, China, USA, Brazil, Australia. It means first is Russia, Canada, China, USA, Brazil, sixth is Australia, and then seventh India. India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, and Bhutan together form a distinct geographical features or geographical unit, popularly known as Indian subcontinent. All these five countries combined together known as Indian subcontinent. It has a very distinctive culture of its own as it's separated from the rest of Asia by a long chain of lofty mountains in the north. कहते हैं इंडिया का डिस्टिंक्टिव कल्चर क्या है, तो इसका खुद का एक कल्चर है जो इसको बाकी दूसरे कंट्री से अलग करता है. किसके हेल्प से? लॉफ्टी माउंटेन के हेल्प से, जो कि इंडिया के नॉर्दर्न साइड में है. Independent India with a population of more than 1.21 billion in 2011. According to 2011 census, the total population of India is 1.21 billion. But now if we talk about the present, then the population of India is 1.30 billion. It means 130 crore. It is the second most populous country in the world after China. चाइना के बाद second most populous country है वो है इंडिया. India has remarkable cultural diversities where people follow different languages, religions, and traditional rituals, customs, and so many things which having or which create diversities in India. But after these diversities, India having a distinctive features, it is unity. Despite the regional diversities, there is an underlying unity which is reflected in our common ways of living throughout the country. Next is पेज नंबर 49, इंडियाज लोकेशन ऑन दी ग्लोब. ग्लोब पे इंडिया का लोकेशन, ये दिख रहा है इंडिया का लोकेशन. ओके, ये फ्रंट से दिख रहा है. अगर हम इसी ग्लोब को टर्न कर दें तो अफ्रीका हमारे फ्रंट में होगा. थोड़ा सा और इस साइड से टर्न कर दें, ऑस्ट्रेलिया हमारे फ्रंट में होगा. तो ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है. जिस लाइन को हम अपने फ्रंट में रखेंगे वो हमारा फ्रंट पोर्शन होगा. इंडिया इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर as it lies to the north of the equator. The Tropic of Cancer, 23.5 degree north, passes through the middle of the country and divides it into almost two equal parts. Almost two equal, it means लगभग टू इक्वल हाफ में इंडिया को डिवाइड करने वाला जो लाइन है, जो लैटिट्यूडनल लाइन है, वो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. The area lying in the north of the Tropic of Cancer is called subtropical India, and the southern area is called tropical India. It means इंडिया का जो southern part है वो ट्रॉपिकल, जो northern part है वो इसका सब ट्रॉपिकल जोन, जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास होता है. नेक्स्ट इज बीइंग सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, इंडिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री है. इसके इधर इंडिया होने के कारण ये इसका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है. इट इज़ बाउंडेड बाय द इंडियन ओशन इन द साउथ
इंडियन ओशियन इसके साउथ में। नेक्स्ट इज द अरबियन सी इन द वेस्ट, अरबियन सी इसके वेस्ट में, एंड बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट, एंड बे ऑफ बंगाल ईस्ट में। The Indian Peninsula lies to the south of Asia and occupies central location at the head of the Indian Ocean। कहता है इंडिया जो है वो सेंट्रल लोकेशन कैप्चर करता है ओनली बिकॉज ऑफ द इंडियन ओशियन, क्योंकि ऑलमोस्ट जितना भी ट्रेड होता है वो सारा कंट्री इंडियन ओशियन से होकर ही गुजरता है। Toward the west of India, across the Arabian Sea, lies the Arab countries around the Persian Gulf and the East African countries। The Indian Peninsula lies to the south of Asia and occupies central location at the head of the Indian Ocean. Toward the west of India, across the Arabian Sea, lie the Arab countries around the Persian Gulf। अरब कंट्री कौन सा? तो ये अरब कंट्री है, यहाँ से ये वाला, एंड द पर्शियन गल्फ एंड द ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज। ये सारा मिलकर इंडिया के साथ एक अलग रिलेशन इस्टेब्लिश करता है, सेटअप करता है। नाउ कम ऑन टू द पेज नंबर 50। डू यू नो इन 1869 द ओपनिंग ऑफ द सुएज कैनल इन इजिप्ट हैज रिड्यूस्ड द डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड इंडिया बाई 7000 किलोमीटर। सुएज कैनल के ओपन होने के बाद इंडिया और यूरोप के बीच का जो 7000 डिस्टेंस है वो रिड्यूस हो गया। कब? इन 1869। इट कनेक्ट द मेडिटेरेनियन सी विथ रेड सी थ्रू द गल्फ ऑफ सुएज। गल्फ ऑफ सुएज के थ्रू या गल्फ ऑफ सुएज खाड़ी के हेल्प से मेडिटेरेनियन सी और रेड सी एक दूसरे से जुड़ता है। कम ऑन टू द डायग्राम। यहाँ पे सुएज कैनल है। जब ये सुएज कैनल नहीं था तो इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए जितने भी कंट्री मूव करते थे, जो यूरोपियन कंट्री थे, उनको ये डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था। लेकिन सुएज कैनल के बनने के बाद यहाँ से आकर ये डिस्टेंस यहाँ से ये यहाँ, तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये 7000 डिस्टेंस जो है वो रिड्यूस हो गया आफ्टर कंस्ट्रक्शन ऑफ सुएज कैनल। ओके, सो कम ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज toward the east of India, across the Bay of Bengal, the Southeast Asian countries such as Malaysia, Indonesia, etc. are located। मतलब अगर हम इंडिया के तरफ बे ऑफ बंगाल की तरफ देखें या साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की तरफ ध्यान दें तो मलेशिया और इंडोनेशिया जो है वो इंडिया का नेबरिंग कंट्रीज़ होगा। बट नेबरिंग कंट्रीज़ के रूप में इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से उससे कनेक्ट नहीं है। इन एंशियंट टाइम्स इंडिया वॉज अ ग्रेट नेवल पावर। एंशियंट टाइम में इंडिया ग्रेट नेवल पावर था। क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट जितने भी ट्रेड होते थे वो इंडियन ओशियन से होकर गुजरा करते थे। जितने भी कंट्री होते थे दे आर पासिंग थ्रू इंडियन ओशियन एंड इफ दे वांट टू ट्रेड विथ इंडिया, बिकॉज इंडिया मोस्ट फेमस कंट्री और पॉपुलर कंट्री एट दैट टाइम इन द ट्रेड ऑफ टेक्सटाइल एंड स्पीसीज। India has its trade relation with the countries lying to its west as well as to the east. Hence the ocean is named as the Indian Ocean। इंडिया इतना ज़्यादा पॉपुलर था, इतना ज़्यादा फेमस था कि उस समय इंडिया के नाम पे ही ओशियन का नाम इंडियन ओशियन रख दिया गया। मतलब जिस ओशियन के थ्रू लोग इंडिया टच करते थे या इंडिया जाते थे ट्रेड करने के लिए, उन्होंने उस ओशियन का नाम ही इंडिया के नाम पे इंडियन ओशियन रख दिया। आवर नेबर्स, India has 15,106.7 km of the land boundaries or the land frontiers। India shares its border with Pakistan and Afghanistan in the northwest। इंडिया के नॉर्थ वेस्ट में अगर हम देखेंगे तो अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान जो है वो नेबरिंग कंट्रीज के रूप में मिलेगा। नेक्स्ट वन इज चाइना, नेपाल एंड भूटान इज इन दी नॉर्थ। इट मीन्स द नॉर्थ फ्रंटियर और द नॉर्थ नेबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया आर नेपाल, भूटान एंड चाइना, एंड द ईस्ट इज बांग्लादेश एंड Maldives। Bangladesh in the east is surrounded by Indian border on three sides। Myanmar share its boundary with Indian states in the northeast। Sri Lanka and Maldives are located to the south of India। श्रीलंका एंड मालदीव जो है इंडिया के साउथ में
बांग्लादेश ईस्ट में और म्यांमार भी ईस्ट में। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई पाक स्टेट एंड गल्फ ऑफ मन्नार, दैट्स वाई श्रीलंका इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि श्रीलंका जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट से इंडिया से अलग होता है। Come on to the India's extent. India is a vast country. Its main land extends between 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north latitude. इंडिया का जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, दिस वन 8 डिग्री 4 मिनट to 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ and 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. It is longitudinal extent. तो इंडिया का ये जो एक्सटेंट होगा यहाँ से ये लाइन जो शो कर रहा है वो लॉन्गिट्यूडनल होगा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी, और ये जो लाइन होगा ये लैटिट्यूडनल होगा। The north south extent of mainland of India is about 3214 किलोमीटर। नॉर्थ से लेकर साउथ तक का इंडिया का जो डिस्टेंस है वो 3214 किलोमीटर का है। लोकेटेड एट 6 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, जो कि 6 डिग्री 14 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड के पास लोकेट होता है। द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज बिटवीन 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, thus its longitudinal extent is 29 degree. It means the total longitudinal extent of India is almost 29 degree. It covers 29 degree. The east-west extent of the country is about 29 and 33 kilometer. North-south extent is 3214 kilometer and east-west extent is 29 and 33 kilometer. The southernmost tip of the mainland of India is Kanyakumari. Southernmost tip of mainland के बारे में पूछ रहा है। mainland से अगर हम बाहर की बात करेंगे अंडमान निकोबार आइलैंड के पास, जो कि इंडिया का southernmost tip है, ये southernmost point है, it is Indira Point. Also known as Cape Comorin. Kanyakumari is also known as Cape Comorin. Not Kanyakumari. The southernmost tip of mainland of India is Cape Comorin. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप जो है वो बे ऑफ बंगाल में लाइज करता है। एंड लक्षद्वीप आइलैंड लाइज इन अरबियन सी। दे फॉर्म पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। इंदिरा पॉइंट इज द साउदर्नमोस्ट टिप ऑफ द इंडियन टेरिटरी दैट लाइज इन निकोबार आइलैंड। इट मीन्स जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट वो निकोबार आइलैंड में। The sun rises in Arunachal Pradesh, the easternmost point of India. It rises in Gujarat in the west after about 2 hours. सनराइज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है, उसके बाद गुजरात में जब सनराइज होता है तो वो 2 घंटे लेट से होता है। क्यों? अभी यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो 29 डिग्री का है, और इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट या फिर किसी भी अर्थ का जो मूवमेंट है 1 डिग्री इक्वल टू वो 4 मिनट होता है। Next is, then if we calculate the time is 29 into 4, it is 116 minute almost, that is 2 hours. You have already learned that the difference of time per degree of longitude is 4 minutes. Each longitude has its own local time. India has selected as 82.5 degree or 82 degree 30 minute east longitude as the standard meridian. इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? तो 82 degree 30 minute east. And what is the standard time? The Indian standard time is for the whole country. It is followed all over the country and it's 5 hour 30 minute ahead. अब ये 5.5 hour कैसे 5 hour 30 minute? तो लेट्स सी 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन। 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट, देन 82 इंटू 4 एंड हाफ इंटू 4 अकॉर्डिंग टू दिस वन। ओके, 82 इंटू 4 इक्वल टू 328 मिनट एंड हाफ इंटू 4 इक्वल टू 2 मिनट, then 328 plus 2 is equal to 330 minute, and if we convert it into hour then it is 5 hours 30 minutes. It is India's standard time.
ओके, IST. Next is from Jammu Kashmir to Kanyakumari, India experiences a wide variety of climate condition, natural vegetation and soil. अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का, तो इंडिया काफ़ी चीज़ में वेरिएशन पाया जाएगा या फिर डाइवर्सिटी पाया जाता है इंडिया में. कैसे? तो पहला कह रहा है क्लाइमेटिक कंडीशन. ऑब्वियस, क्लाइमेट कैसा होगा? हॉट एंड कोल्ड वेदर होगा, या फिर रेनी सीजन होगा, विंटर होगा और समर सीजन होगा. नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन का कैसे वेरिएशंस है? तो नेचुरल वेजिटेशन में टेम्परेट सॉफ्टवुड फॉरेस्ट, टेम्परेट हार्डवुड फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट. नेक्स्ट इज सॉइल, alluvial soil, laterite soil, red soil, yellow soil, desert soil and mountainous soil. So we have lots of diversities in respect of climatic condition, natural vegetation and soils. Come on to the, do you know, a large part of the India Indira Point got submerged in tsunami of 2004. 2004 के सुनामी में जो साइक्लोन आया था, समुद्र में जो तूफान आया था, उसमें इंदिरा पॉइंट सबमर्ज हो गया था, डूब गया था. बट नाउ द सी इज ग्रेजुअली रिट्रीटिंग बैक ऑफ इट्स ओरिजिनल प्लेस. फिर से समुद्र के उसके प्लेस पे वापस आने के कारण इंदिरा पॉइंट जो है वो अपने ओरिजिनल प्लेस पे वापस आ गया है. कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज नंबर 52, द स्माइलिंग फेस ऑफ आवर कंट्री. द सरफेस ऑफ इंडिया है डाइवर्सिटी इन लैंडफॉर्म्स और रिलीफ फीचर्स. अभी तक हम लोग बात कर रहे थे क्लाइमेटिक कंडीशन का, सॉइल का एंड वेजिटेशन का. अब बात करेंगे इंडिया के लैंड फॉर्म में भी वेरिएशन पाया जाता है, रिलीफ फीचर्स में भी वेरिएशन पाया जाएगा. कैसे? कहीं पे प्लेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं माउंटेन्स है. द लैंड फीचर्स आर डिवाइडेड एज द नदर्न माउंटेन, नदर्न प्लेन्स एंड द प्लेट्यू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड. ये है इसका रिलीफ फीचर्स. फर्स्ट ऑफ ऑल द नदर्न माउंटेन. These mountains are seen along the northern border of India from Jammu and Kashmir to Arunachal Pradesh. They are called young mountains because they were formed in the latest geographical period. It means just millions of years ago. तो जब हम यंग फोल्ड माउंटेन की बात करते हैं, जो यंग माउंटेन जो हाल फिलहाल बना है, जैसे हिमालय माउंटेन, तो ये माउंटेन जो है या फिर अरावली रेंजेस, ये सब यंग फोल्ड माउंटेन है जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले फॉर्म हुआ है. अब अगर हम बात करेंगे ओल्ड माउंटेन की, तो वो बिलियंस ऑफ ईयर्स अगो उनका फॉर्मेशन हुआ है. ऐसे भी अर्थ का फॉर्मेशन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो माना जाता है. नेक्स्ट इज देयर आर सेवरल माउंटेन रेंजेस सच एज काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एंड द हिमालयस. ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन. ओके, next is come on to the page number 53, the K2 peak, which is the world second highest peak, lies in the Karakoram range. Karakoram range में K2 जो है वो हाईएस्ट वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक है आफ्टर माउंट एवरेस्ट. एंड व्हाट इज द अदर नेम ऑफ K2 इज इट इज माउंट गॉडविन ऑस्टिन. देयर आर मेनली बिग ग्लेशियर हियर. सियाचिन ग्लेशियर, द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया, लाइज हियर. इंडिया का लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है सियाचिन ग्लेशियर, वो काराकोरम रेंज में है, K2 पीक में है. द हिमालय एक्सटेंड इन एन आर्क शेप फॉर्म फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट टू द नॉर्थ ईस्ट along the border up to a length of about 2500 kilometer. There are 3 parallel ranges distinct from each other. 3 parallel ranges is Himadri, Himachal and Shivalik. Do you know glacier is extremely slow moving river of ice. आइस का स्लो मूविंग रिवर जो है वो ग्लेशियर कहलाता है. मतलब ग्लेशियर पिघलता रहता है और वो मूव करता रहता है, देन इट इज कॉल्ड स्लो मूविंग ऑफ आइस रिवर या स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस. मैप के हेल्प के थ्रू थोड़ा सा माउंटेन का फॉर्मेशन समझ लेते हैं. जैसे भी बात किया कि माउंटेन जो है वो हिमालय रेंजेस या जो भी माउंटेन रेंजेस है वो आर्क के शेप में है. देन दिस इज कॉल्ड आर्क शेप. ये इस तरह से जो फोल्ड होता है ना, ये आर्क के शेप में होता है. ओके, अब नेक्स्ट क्या है? पैरेलल रेंजेस है. पैरेलल हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक. ये 3 हिमालयन माउंटेन रेंजेस है. हिमाद्री माउंटेन, हिमाचल एंड शिवालिक. नेक्स्ट इज, अब ये कह रहा है 2500 किलोमीटर लेंथ है. मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका लेंथ जो है वो 2500 किलोमीटर का है. वैसे भी हम लोग जो पढ़े थे वो इंडिया का एक्सटेंट यहाँ से यहाँ तक का
2933 किलोमीटर्स का था। हिमालय मीन्स द एडोब ऑफ स्नो। हिमालय का मतलब क्या होता है? एबोड ऑफ स्नो, मतलब बर्फ से ढका हुआ। दिस नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द ग्रेटर हिमालय और द हिमाद्री। नदर्न हिमालय, मिडिल हिमालय जो होगा वो ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय होगा, हिमाद्री की जगह हिमाचल होगा, एंड लोअर हिमालय इज नोन एज हिमाद्री, हिमाचल, एंड लास्ट वन इज शिवालिक। इट इज और इट हैज वर्ल्ड हाईएस्ट पीक एंड परमानेंट स्नो कवर्ड एरियाज। परमानेंट स्नो कवर्ड एरियाज मतलब हमेशा स्नो कवर्ड एरियाज होता है ये। क्यों? ऑब्वियस, सबसे हाईएस्ट पीक होगा, सबसे हाइट पे होगा, तो हमेशा बर्फ से ढका ही होगा। एंड माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर, द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड लाइज इन दिस रेंजेस। हिमाद्री रेंजेस में माउंट एवरेस्ट जो सबसे हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो इसी रेंजेस में, हिमाद्री रेंजेस में ही। सेकेंड रेंज ऑफ द हिमालय इज द मिडिल हिमालय और द हिमाचल। इट इज़ फेमस फॉर हिल स्टेशन लाइक शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, etc. ये सारा हिल स्टेशन मिडिल हिमालय, हिमाचल में है। द सदर्न मोस्ट रेंज इज शिवालिक रेंज। इट इज़ फेमस फॉर वैलीज नोन एज दून्स, दैट इज देहरादून, पतलीदून, कोटलीदून, पूर्वांचल। इट इज़ द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द माउंटेन्स। कम ऑन टू द नेक्स्ट, द नदर्न प्लेन। अभी हम लोगों ने माउंटेन का पढ़ा, देन नदर्न प्लेन, फिर प्लेट्यू, फिर डेजर्ट, देन कोस्टल प्लेन्स, और उसके बाद आइलैंड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो रिलीफ फीचर्स है, और ये सारा पार्ट रिलीफ फीचर्स का ही है। कम ऑन टू द नदर्न प्लेन। नदर्न प्लेन पढ़ने के बाद इसके बाद का जो भी टॉपिक होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो कम ऑन टू द नेक्स्ट। टू द साउथ ऑफ द शिवालिक रेंजेस द ग्रेट नदर्न प्लेन्स एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब टू असम। कहता है नदर्न प्लेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक है? तो नदर्न प्लेन एक्सटेंड फ्रॉम पंजाब टू असम, पंजाब से लेकर असम तक। दे आर मेड ऑफ फाइन सिल्ट ब्रॉट डाउन बाई द रिवर फ्रॉम द हिमालयस इन द नॉर्थ एंड द प्लेट्यू रीजन इन द साउथ। हिमालय से जो भी रिवर आती है वो अपने साथ सिल्ट लेकर आती है, उस सिल्ट से नदर्न प्लेन का और प्लेट्यू रीजन का फॉर्मेशन करती है। दिस इज़ द लो लाइंग फ्लैट एंड द यूनिफॉर्म लैंड। ये यूनिफॉर्म होता है मतलब पूरा का पूरा एरिया प्लेन वाला एरिया होता है, कहीं पे भी किसी भी तरह का जो एरिया है वो वेरिएशन वाला नहीं होगा, पूरा का पूरा नदर्न प्लेन का एरिया है। इट हैज़ बीन फॉर्म बाय द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर। मेनली नदर्न प्लेन का फॉर्मेशन जो होता है वो गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर से होता है। देयर सेवरल ट्रिब्यूटरीज एंड ऑल्सो विद देयर सेवरल ट्रिब्यूटरीज। क्यों? क्योंकि इंडस रिवर जो है वो तो वेस्ट की तरफ, पंजाब के, पाकिस्तान की तरफ निकल जाती है। बच गई दो रिवर, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का भी ऑलमोस्ट पार्ट जो है वो तिब्बत में फ्लो करता है और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से इंडिया में एंटर करती है। नेक्स्ट इज रिवर सतलुज इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ द इंडस सिस्टम। इंडस सिस्टम का सबसे जो लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज है वो सतलज है। गंगा बेसिन इज द लार्जेस्ट बेसिन ऑफ इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट बेसिन गंगा बेसिन है। एंड यमुना रिवर इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज विच जॉइन इट एट इलाहाबाद अलॉन्ग द संगम। संगम में इलाहाबाद में गंगा और गंगा और यमुना का मिलन होता है, या गंगा से यमुना जो है वो मिलती है। तो इस तरह से यमुना जो है वो गंगा का लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरीज भी होती है। नेक्स्ट इज, डू यू नो द रिवर विच जॉइन अ मेजर रिवर आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज क्या है अभी सोच रहे होंगे, तो जो मेजर रिवर से ज्वाइन होती है वो ट्रिब्यूटरीज, और जो मेजर रिवर से अलग होती है छोटी छोटी रिवर के फॉर्म में, देन इट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। ऑब्वियस, ट्रिब्यूट होना, डिस्ट्रीब्यूट होना, बढ़ जाना, अलग अलग डिवाइड हो जाना। गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर फॉर्म अ ग्रेट डेल्टा, द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड, बिफोर फॉलिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है, बिगेस्ट डेल्टा फॉर्म करती है। बिगेस्ट डेल्टा क्या है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसको सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। दिस डेल्टा हैज़ अ ट्रायंगुलर शेप, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज डेल्टा। ये ट्रायंगुलर शेप में होता है, और ऑब्वियस मैथ में हम लोग डेल्टा का जो लोगो देखते हैं वो ट्रायंगुलर शेप में होता है। इट इज़ अ लो लाइंग एरियाज वेयर द मेजर रिवर्स आर स्प्लिट इनटू सेवरल चैनल। जहाँ पे मेजर रिवर जो है वो सेवरल चैनल्स में डिवाइड हो जाती है। दिस डेल्टा रीजन नियर द सी इज कॉल्ड सुंदरबन, और इस तरह का डेल्टा जो है वो
सुंदरवन डेल्टा कहलाता है। ये डेल्टा सुंदरवन डेल्टा क्यों कहलाया? बिकॉज ऑफ द लॉट्स ऑफ और द फॉरेस्ट कवर एरिया कवर्ड विथ सुंदरी trees. The northern plain have all ideal conditions to attract human settlements. They are the biggest producer of food grains. Therefore, this plain is densely populated. Obvious ये प्लेन जो होगा वो डेंसली पॉपुलेटेड होगा। क्यों डेंसली पॉपुलेटेड है? क्योंकि यहाँ का जो एरिया है, जो लैंड है, वो काफ़ी फर्टाइल है, वेरी मच फर्टाइल है। दैट्स वाई दिस एरिया इज कवर्ड विथ population and also this area is known as populous area और डेंसली पॉपुलेटेड एरिया। तो इस वीडियो में अभी फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट हम लोग द डेजर्ट स्टार्ट करेंगे। ओके, ध्यान से वीडियो को देखोगे। कोई भी क्वेरीज होगा तो कमेंट सेक्शन में डालोगे। बाकी आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो, पूछ सकते हो। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।